हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 9 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक फॉर्मूले ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। इसमें हम देखेंगे कि एक केमिकल फार्मूला क्या होता है और एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम किस तरह से बिल्ड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज अ केमिकल फार्मूला. A chemical formula is defined as the representation of a molecule in terms of the symbols of the constituting atoms. इसका मतलब एक केमिकल कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स मौजूद हैं उनके सिंबल्स से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड और द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला. अब हम क्या देखते हैं, यूजुअली एक केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला में दो पार्ट्स होते हैं. एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है. पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट. और जब हम इन दोनों पार्ट्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को कंबाइन करते हैं, तब जाकर एक केमिकल फॉर्मूला बिल्ड होता है. इससे पहले कि हम देखें ये पॉजिटिव पार्ट क्या होते हैं, नेगेटिव पार्ट क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे हमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, तो हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं. इट इज Na2CO3. इसी तरह से कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आता है CuSO4. सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये है Na3PO4. इन सभी कंपाउंड्स के फॉर्मूला में आप देख सकते हैं देयर आर टू पार्ट्स. जैसे सोडियम कार्बोनेट में आप देखो, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट. इसी तरह कॉपर सल्फेट में, कॉपर इज द पॉजिटिव पार्ट एंड सल्फेट इज द नेगेटिव पार्ट. सोडियम फॉस्फेट में सोडियम पॉजिटिव पार्ट है और फॉस्फेट नेगेटिव पार्ट है. अब हम ये दो पार्ट्स किस तरह से ज्वाइन करते हैं, किस तरह से इनको कंबाइन करके हम एक केमिकल फार्मूला बिल्ड करते हैं, अब उसके बारे में बात होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था, देयर आर टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज, वन इज द पॉजिटिव पार्ट, द अदर इज द नेगेटिव पार्ट. और जो पॉजिटिव पार्ट है, दिस पॉजिटिव पार्ट इज जनरली known as cation and the negative part is regarded as anion. Cations are also called as electropositive ions and anions they are called as electronegative ions. Cations का एक और नाम है, they are also called as basic radicals, while anions are also called as acid radicals. So these are different names which are given to the two parts, that is the positive part and the negative part of a chemical formula or a chemical compound. Now these positive and negative parts are ions. I would say ions in short form, in simple form they are called ions. These ions are classified into simple ions and compound ions.
Now, what is the difference between simple ions and compound ions? Simple ions are the ions which contain only one atom in them. And what are compound ions? Which contain more than one atoms. For example, let us take a few examples. Simple ions में आप देखें H positive ion. It is a cation and contains only one hydrogen in it. Take the case of Na positive sodium cation. It also contains only one atom. Calcium ion contains only one atom. The charge is 2 positive, but the atom number of atoms is only one, so it is a simple ion. Aluminium 3 positive, Fe2 positive or Fe3 positive. Cl negative, O2 negative, oxide ion, chloride ion, bromide ion, iodide ion, H negative ion, that is hydride ion. You can see that all of these ions are made up of only one atom, a single atom. So they are called as simple ions. And what about compound ions? They contain more than one atoms. For example, we have OH negative, that is hydroxide ion. It contains two atoms, one that of oxygen, the other that of hydrogen. NH4 positive, that is ammonium ion. It contains 5 atoms. We have CO3 2 negative, carbonate ion, contains 4 atoms, 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen. Look at this. This is peroxide ion. Peroxide ion contains 2 atoms, although the 2 atoms are of the same element, but since it contains more than one atom, this is also a compound ion. We have NO3 negative, that is nitrate ion. Similarly, we have sulfate ion, and so on. There are several ions of this type which contain more than one atoms. These are called as compound ions. They may also be regarded as simple radicals and compound radicals. जैसे हमने देखा, इनको हम basic radicals और acid radicals का नाम भी देते हैं. So these are the two types of ions. You have to keep these two types of ions into consideration while writing the formulae. वो हम discuss करेंगे आगे चलकर. तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कैटाइंस हैं. मोनोवेलेंट कैटाइंस, इसका मतलब है द कैटाइंस विच हैव ए नेट प्लस वन चार्ज. इनकी एक लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है. इस लिस्ट को आप नोट डाउन कीजिए और इसके अलावा भी कुछ और आयंस आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं. फिर यहाँ पर लिस्ट है बाइवेलेंट कैटाइंस की जिनका नेट चार्ज 2 पॉजिटिव है. फिर ट्राइवेलेंट कैटाइंस है जिनका नेट चार्ज 3 पॉजिटिव है, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं. और टेट्रावेलेंट कैटाइंस जिनका नेट चार्ज 4 पॉजिटिव है. अब हम एक लिस्ट देखेंगे जिसमें हम एनाइंस की बात करेंगे. एनाइंस विच कैरी ए नेट नेगेटिव चार्ज. उसमें भी हम कैटेगराइज करेंगे मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट में. तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं मोनोवेलेंट एनाइंस हैं जिनका नेट चार्ज -1 है. बाइवेलेंट एनाइंस का नेट चार्ज -2. ट्राइवेलेंट एनाइंस का नेट चार्ज -3 है और टेट्रावेलेंट एनाइंस में द नेट चार्ज इज -4. तो इस तरह से हम ये एक पूरी लिस्ट बनाएंगे. आप लोग भी ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पर बना कर दी है, इसके अलावा भी आप कुछ और आयंस देखें अपनी बुक से, उनको नोट डाउन कीजिए. उसके बाद हम इसके आगे जो बिल्डिंग ऑफ फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप लोग एक पूरी लिस्ट तैयार कीजिए कैटाइंस और एनाइंस की. ओके, आई होप आपने ये लिस्ट तैयार कर ली है. अब हम आगे चलते हैं. अब हम देखेंगे हाउ टू बिल्ड द केमिकल फार्मूला.
तो एक केमिकल फार्मूला किस तरह से बिल्ड किया जाए फ्रॉम द फॉर्मूले ऑफ द कैटाइंस एंड द एनाइंस, इसके लिए जो हमारे पास मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस मेथड। तो अब हम देखेंगे कि ये क्रिस क्रॉस मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम एक केमिकल फार्मूला बिल्ड करेंगे। तो एक केमिकल फार्मूला बनाने के लिए जो एक क्रिस क्रॉस मेथड है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक जनरल केमिकल कंपाउंड सपोज करेंगे जिसमें कैटाइन मान लीजिए ए है और इसके ऊपर नेट चार्ज है X पॉजिटिव, और मान लीजिए जो इसमें एनाइन है उसके ऊपर एनाइन है B और उसके ऊपर नेट चार्ज मान लीजिए ये है Y नेगेटिव। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कैटाइन और एनाइन के फॉर्मूले साइड बाय साइड लिखने हैं। मतलब हमने ऐसे लिखना है, A उसका चार्ज भी साथ में लिखेंगे X पॉजिटिव, और साथ में हम लिखेंगे उसके बाद B दैट इज एनाइन और उसका चार्ज भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये जो कैटाइन और एनाइन है इनके ऊपर जो चार्जेस है, मतलब X और Y जो इनके ऊपर चार्जेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई द चार्जेस, दैट मीन्स X और Y को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव ये दो चार्जेस हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के बाद उनका कॉमन फैक्टर रिमूव करने के बाद क्या बच जाता है, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। या अगर कहीं पर ऐसे होगा, मान लीजिए कैटाइन का चार्ज 2 पॉजिटिव है, एनाइन का चार्ज 4 नेगेटिव है, तो उनको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उनका कॉमन फैक्टर है 2, वो रिमूव करके यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। इन केस कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो वहाँ पर चार्जेस सेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर +2 और -3 है, तो चूंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, सो दे विल रिमेन एज सच। सो द फर्स्ट थिंग इज write the formulae side by side and then remove the common factor if any and simplify the charges। जब हमने चार्जेस को सिंप्लीफाई कर दिया, अब मान लीजिए सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो X और Y था, मान लीजिए ये हमें मिल गए अब A पॉजिटिव और B नेगेटिव। इनके सिंप्लीफाई हो गए, अदरवाइज वो सेम भी रह सकते हैं, दैट इज X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव भी रह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा स्टेप होगा, इसमें अब हम इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ए के ऊपर अब सिंप्लीफाई करने के बाद जो चार्ज आ गया है दैट इज ए पॉजिटिव, और बी के ऊपर मतलब एनाइन के ऊपर मान लीजिए चार्ज है अब बी नेगेटिव। अब इनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे, ए के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्मॉल ए है, हम इसको ले जाएंगे बी के साथ एज ए सबस्क्रिप्ट। रिमेंबर it is to be used as सबस्क्रिप्ट विद बी। कैटाइन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था उसको हमने एनाइन के नीचे एज सबस्क्रिप्ट यूज किया, और सिमिलरली जो एनाइन के ऊपर चार्ज है या उसका मैग्नीट्यूड मैं कहूँगा जो ये स्मॉल बी है, इसको हम ले जाएंगे और कैटाइन के साथ इसको हम एज सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। अब जब हम ये सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए के साथ सबस्क्रिप्ट क्या आ गया, स्मॉल बी आ गया, और बी के साथ सबस्क्रिप्ट में क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया। इस तरह से एक केमिकल फॉर्मूला बिल्ड हो गया। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। लेकिन सबस्क्रिप्ट्स लिखते वक्त हमने दो चीजों का यहां पर ध्यान रखना है। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड। पहला पॉइंट है कि अगर कहीं सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा है, सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस सबस्क्रिप्ट।
बिकॉज जब हम सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि ये 1 है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इफ द सबस्क्रिप्ट टू बी रिटन इज 1, it is not to be written. There is no need to write 1 as the subscript. हाँ, अलबत्ता अगर सबस्क्रिप्ट में 2, 3, 4 एट्सेट्रा हो उसको लिखना ज़रूरी है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम बात कर रहे थे सिंपल आइंस की और कंपाउंड आइंस की. अगर एक सिंपल आइन है, उसके नीचे जब हमने सबस्क्रिप्ट लिखना है, it is written as such. As such means कि हमने आइन के फॉर्मूला के साथ कोई ब्रैकेट दैट इज पैरेंथेसिस हमने यूज नहीं करनी है. लेकिन अगर एक कंपाउंड आइन है और उसके नीचे हमने सबस्क्रिप्ट लिखना है तो वो सबस्क्रिप्ट वो लिखा जाएगा इन पैरेंथेसिस. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैटाइन है NH4 पॉजिटिव. आप जानते हैं ये एक कंपाउंड आइन है. तो अगर हमने इस कंपाउंड आइन के साथ एज सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना है, सो वी विल हैव टू राइट इट आफ्टर द पैरेंथेसिस इन दिस वे. इसके मुकाबले में अगर हमारे पास एक आइन है Na पॉजिटिव, यू कैन सी दैट Na पॉजिटिव इज ए सिंपल आइन, और इसके साथ अगर हम सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना चाहते हैं तो हम इसको एज सच लिखेंगे विदाउट द यूज ऑफ पैरेंथेसिस. सेम इज द केस विद एनाइंस. जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक एनाइन है Cl नेगेटिव, दिस इज ए सिंपल आइन, और इसके साथ हम सबस्क्रिप्ट में 3 लिखना चाहते हैं तो हम एज सच लिखेंगे विदाउट द यूज ऑफ पैरेंथेसिस. इसके मुकाबले में अगर हमारे पास नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव है, विच इज ए कंपाउंड आइन और कंपाउंड रेडिकल, और इसके साथ अगर हमने सबस्क्रिप्ट में 3 लिखना है तो हमें पैरेंथेसिस यूज करके फिर 3 लिखना है. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस मेथड. अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. जिंक सल्फेट की एग्जांपल ले लेते हैं. जिंक सल्फेट में कैटाइन है Zn2 पॉजिटिव और सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव. तो हमने कैटाइन और एनाइन का फॉर्मूला लिखा. अब हम क्या करेंगे, इनके जो चार्जेस हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे. यस, ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद जिंक का चार्ज आ जाएगा +1 और सल्फेट का चार्ज आ जाएगा -1. अब हमने क्या करना है, हमने इनको क्रिस क्रॉस करना है. जिंक का चार्ज यहाँ पे, सल्फेट का चार्ज यहाँ पे, लेकिन जैसे हमने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में आ रहे हैं वो दोनों 1 हैं और हमें सबस्क्रिप्ट में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. मतलब हम जिंक लिखेंगे एज सच, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. और इसी तरह सल्फेट के साथ भी 1 आ रहा है तो उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारा फॉर्मूला बन गया ZnSO4. सिमिलरली सोडियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं. सोडियम सल्फेट में कैटाइन है Na पॉजिटिव, मतलब +1 है इसका चार्ज, और सल्फेट क्या है, सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव इसका चार्ज है. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, +1 और -2 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो अब हम क्रिस क्रॉस शुरू कर देंगे. सल्फेट का चार्ज है 2, इस 2 को हम लाएंगे सोडियम के साथ एज सबस्क्रिप्ट, तो सोडियम के साथ हम 2 लिखेंगे एज सच, कोई पैरेंथेसिस नहीं बिकॉज इट इज़ ए सिंपल आइन. और सोडियम के साथ 1 था चार्ज, उस 1 को जब हम सल्फेट के नीचे लाएंगे सबस्क्रिप्ट में तो हम जानते हैं 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हम सल्फेट एज सच लिख लेंगे, नीचे 1 यूज नहीं होगा. और जब हम सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सल्फेट के साथ हमें पैरेंथेसिस यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक क्लोराइड. In this case we have zinc 2 positive and chloride, this is Cl -1. Again the charges cannot be further simplified, तो क्या करेंगे, हम क्रिस क्रॉस शुरू कर देंगे. क्लोराइड का 1 जिंक के नीचे, मतलब जिंक के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में बिकॉज इट इज़ 1. तो क्लोराइड के साथ क्या आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में 2, और ये 2 हमें लिखना है. और कैसे लिखना है, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं करना है बिकॉज क्लोराइड वाज ए सिंपल आइन.
अब मैंने यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नेम्स लिखे हैं, आप इनके केमिकल फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बाय यूजिंग द रूल्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इस वीडियो को अभी पॉज करके इनके आंसर लिखिए और फिर उसके बाद मैं इनके आंसर्स यहाँ पर भी लिखूँगा, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने कितने ठीक किए हैं। तो आप पॉज करके आंसर्स कीजिए। अब आप इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। नाउ व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड? आप जानते हैं एक केमिकल कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। अब हर एलिमेंट का मास कितना है, हम कहेंगे रिलेटिव मास कितना है in terms of percentage as compared to the total mass of the chemical compound, that is called as percentage composition. इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, it is the relative mass of each of the constituent element per 100 parts of mass of the compound. मतलब हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो हम जितने एलिमेंट्स एक कंपाउंड में हैं हम उन सभी एलिमेंट्स का रिलेटिव मास निकालेंगे पर 100 पार्ट्स मास ऑफ द कंपाउंड एज ए होल। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। मान लीजिए फॉर्मूला है AXBY। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो टोटल मास निकालेंगे इस कंपाउंड का। टोटल मास, उसमें हम टोटल मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, मतलब ये जो X टाइम्स A के एटम्स हैं और Y टाइम्स B के एटम है, उन सब के एटॉमिक मासेस को हम ऐड करेंगे। इन दिस वे वी विल गेट द टोटल molecular mass of the compound. Now out of that total molecular mass we will take the mass of A alone। ये जो X atoms है A के, उनका मास कितना है, फ्रॉम देयर एटॉमिक मासेस हम ये कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से जो Y टाइम्स B है उनके भी हम मासेस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम देयर एटॉमिक मासेस। और उसके बाद फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ A इन दिस कंपाउंड। तो हम देखेंगे इसमें एक मॉलिक्यूल में A का मास कितना निकला, डिवाइडेड बाय जो टोटल मास था इस मॉलिक्यूल का, that is molecular mass multiplied by 100. In this way we will get the percentage of A. This is the percentage by mass. Similarly जब हमने percentage of B calculate करना है in this compound, we will take the total mass of B element in this compound divided by the total molecular mass multiplied by 100. इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हम एक कंपाउंड लेते हैं, ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसमें देखना है, इसमें तीन एलिमेंट्स है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द मॉलिक्यूलर मास। वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, बट वी नो दैट देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 16। नाउ इट बिकम्स 40 प्लस 12 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 100। सो द टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 100। अब हमने क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। सो वी विल टेक द मास ऑफ कैल्शियम अलोन। The mass of calcium in this molecule was 40, so we will take the mass of calcium 40 divided by total mass, that is 100, and then multiply it with 100. तो ये कितना आ जाएगा, it will come out to be equal to 40%. Similarly percentage of carbon कैसे निकालेंगे? Now we will take the mass of only carbon, that is 12, divided by the total mass of the molecule, that is 100, multiplied by 100. It will come out to be 12%. Now the percentage of oxygen, now the mass of oxygen in this molecule is 48. We will take it as 48 divided by total mass, that is 100, multiplied by 100, and we get
48% by mass of oxygen. Now let us take the case of कार्बन डाइऑक्साइड. हम इसमें फाइंड करेंगे कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज बाय मास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. कार्बन का एटॉमिक मास इसमें कितना है, दिस इज 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास. सिंस देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सो इट बिकम्स 2 times 16, दैट मीन्स 12 plus 32 and the total molecular mass is 44. अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन. कैसे करेंगे, कार्बन का मास कितना है, इट इज़ 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास, इट इज़ 44 and multiplied by 100 and the value comes out to be 27.27%. So this is the percentage of carbon in this compound. Now the percentage of oxygen. Take the mass of oxygen in this molecule, that is 32, divide it by total mass 44 into 100 and it is 72.72%. And in order to क्रॉस चेक दिस, अगर हम इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करेंगे, द सम ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इट शुड बी इक्वल टू 100. और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 99.99%, दैट इज 100%. ये जो एरर इसमें है 0.01 का, दैट इज ओनली द कैलकुलेशन एरर. So in this way we can calculate the percentage composition of any chemical compound. So this was all about today's topic. Next topic में हम बात करेंगे empirical and molecular formula की and how to determine the empirical and molecular formula. तो अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते और अपना ख्याल रखिएगा. अगले टॉपिक में मिलते हैं.